हाँ पढ़ो। Adjournment of the House means suspension of the sitting of the House by the Speaker. Prorogation means termination of the session of the Parliament. The power of adjournment of the House rests with the Speaker or the Chairman, as the case may be, and the power of prorogation of a session belongs to the President. The House is also adjourned after the business of the day is over, when the death of a sitting slash ex member of the House occurs, when there is so much disorder in the House that it is difficult to conduct the business for the want of quorum, and as the Speaker finds it necessary. Speaker of the Lok Sabha. The Speaker of the Lok Sabha is the presiding officer of the Lok Sabha who conducts business of the House. He or she occupies a great authority and responsibility. He or she has wide powers to maintain discipline in the House. In the table of the precedence, he or she ranks higher than all the cabinet minister other than the Prime Minister. With respect to the discharge of his or her power and functions, the Speaker is not answerable to anyone except the Houses. No court of law can go into the merits of ruling given by him or her. Elections. The Speaker of the Lok Sabha is elected among its own members soon after the newly elected House meets for the first time. When the House is dissolved, the Speaker does not vacate his or her office. He or she remains in office till a new Speaker is elected by the new Lok Sabha. In its first meeting, the Speaker is elected for a term of 5 years. He or she can seek re-election any number of times if he or she is elected as the members of the Lok Sabha. The Speaker may resign from his or her post on health or on other grounds by submitting a letter of resignation to the Deputy Speaker. The Speaker can also be removed by the Lok Sabha if the majority of the members pass a resolution to this effect. Deputy Speaker. The Constitution provides for the office of a Deputy Speaker who performs the duties of the Speaker when the latter is absent or while the office is in the Speaker is vacant. The Deputy Speaker is elected or it is removed from office in the same way as the Speaker. हाँ Role and the functions of the Speaker. The role and the functions of the Speaker may be categorized under the following heads. The business of the House. The Speaker presides over the meetings of the House. All speeches and reminders to the Speaker. He or she allows time for discussion. The Speaker interprets the rules of the procedure of the House. His or her decision is in all parliamentary matters is final. All bills passed by the House is significantly him or her before they are sent to the Rajya Sabha for its consideration or to the President for the assent. The Speaker decides that the admissibility of the all questions of the resolution. He or she decides the admissibility of a motion of adjournment. He or she puts the issues to vote and announces the result. The Speaker does not vote in the House, except when there are equal votes on both sides, the Treasury benches, and the opposition. The Speaker decides whether a bill is money bill or not. ओके डिफरेंट, थैंक यू विदेशा, नाइस। तो अभी देखो यहाँ पे एडजमेंट एंड प्रोपोगेशन ऑफ हाउस मतलब, अरे प्रोपोगेशन नहीं, एक्चुअली मैं गलत, प्रोरोगेशन। ओके, प्रोरोगेशन मतलब बंद कर देना, रुका देना पूरा हाउस को, मीटिंग बंद कर देने का, डिस्कस नहीं करना है। एडजमेंट मतलब थोड़ा पोस्टपोन, बराबर है। तो ये आगे ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। तो बोला कौन से केस में आप वो मीटिंग को यू कैन मतलब बंद कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। तो इसे प्रोरोगेशन मीन टर्मिनेशन, हाँ यू कैन सी द वर्ड टर्मिनेशन, टर्मिनेट करना और बंद कर देने का, वो सेशन बंद करने का। अभी आगे डिस्कशन नहीं होगा। तो कौन से केस में ऐसा कर सकते हैं हम लोग? आफ्टर द बिजनेस फॉर द डे इज ओवर, मतलब आज का 5 बज गया समझो और आज खत्म हो गया, तो आज के दिन के टर्मिनेट, अभी टुमारो यू हैव टू डू लाइक दैट। व्हेन द डेथ ऑफ ए सिटिंग और एक्स मेंबर ऑफ द हाउस अकर, मतलब कोई हाउस का कोई समझो मर गया है, कोई प्रेसिडेंट या कोई भी जो एमपी है वो अगर मर गया और वो टाइम पे हाउस चल रहा है, मीटिंग चल रही है, तो आप उसको आपको बंद करना पड़ेगा। और एक्स मेंबर ऑल्सो, मतलब अभी नहीं है वो पोजीशन पे, एक्स एमपी था पहले बना हुआ है और फिर भी वो मर गए, तो आपको हाउस को बंद करना पड़ेगा। ठीक है। व्हेन
देर इज सो मच डिसऑर्डर है, इनडिसिप्लिन हो रही है, सब मारा मारी कर रहे हैं, कुर्सी फेंक रहे हैं, तो आप बंद कर सकते हो हाउस, वो चेयरमैन के हाथ में, स्पीकर के हाथ में। फॉर वांट ऑफ कॉरम, सफिशिएंट नंबर नहीं है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, कितना होना चाहिए मिनिमम कॉरम का, कितने होने चाहिए कॉरम? 110 सर, 110। 1/10, वेरी गुड। तो 1/10 होना चाहिए। एज एंड व्हेन द स्पीकर फाइंड इट नेसेसरी, और इसके अलावा फिर भी स्पीकर को कुछ लगे कि अभी मुझे ये सेशन बंद करना है, बेसिकली क्या होता है कि आप डिस्कस ही नहीं कर पा रहे हो कोई टॉपिक को, तो सेशन चला के क्या फायदा, अननेसेसरी और प्रॉब्लम होगा और झगड़ा होगा। सो ही कैन एबल टू टर्मिनेट, प्रोरोगेशन कर सकते हो, ठीक है। तो पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन, कौन से केस में वो कर सकते हैं एडजर्नमेंट एंड प्रोरोगेशन, स्पीकर, तो ये आएगा 5 पॉइंट। स्पीकर ऑफ द लोकसभा कौन है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रिसाइडिंग ऑफिसर, लीड करेगा वो, बरोबर है, मीटिंग को। हु कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस, ही ऑक्यूपाई अ पोजीशन ऑफ ग्रेट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी है, पावर भी है। ही और सी वाइड पावर, देखो लिखा है, मेंटेन डिसिप्लिन इन द हाउस, डिसिप्लिन मेंटेन करना है। डिस्कशन हो रहा है, मैंने आप लोग को देखा, वीडियो भेजा हुआ है, अगर आपने अच्छे से किसी ने देखा रहेगा तो आपने देखा, उसमें लिखा है, वो बोलते हैं माननीय सभापति, ऐसा करके वो एड्रेस कर रहा है, हाँ सर। बरोबर, एग्जैक्ट मैंने वो वीडियो सर वो आपने वो भी भेजा था ना, राहुल गांधी का राहुल कास्ट। तो मैंने जानबूझ के वो आपको भेजा है कि आपको पता चले, आप जब भी पढ़ो तो यू नो कि व्हाट इज हैपनिंग देयर, यू नो। ऐसे ऐसे एजम्पशन करने की जरूरत नहीं है, अगर हमारे पास है, वी हैव सो मेनी वीडियोस, सो यू कैन रिफर इट, आपको थोड़ा इमीडिएटली याद रहेगा। इन द टेबल ऑफ प्रेजेंस, ही और सी रैंक हायर रैंक देन ऑल कैबिनेट मेंबर, जितने भी मेंबर्स है वहां पे, उसमें से वो रैंक के कंसिडरेशन में वो हाईएस्ट है, बराबर, उनका रैंक ज्यादा है। अदर देन प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से कम, बट ये बाकी सब कैबिनेट मिनिस्टर से ज्यादा। with respect to discharge power and function, the speaker is not answerable to anyone except the house. No court of law can go into the merits of a ruling given by the him, और मतलब अगर वो कोई, अभी उन्होंने क्या किया, एडजन कर लिया कोई कारण से, या किसी कैबिनेट मिनिस्टर को उसने टेम्पररी सस्पेंड किया, तो ही कैन नॉट कम इन टू द हाउस। 10 दिन 15 दिन का सस्पेंशन कर सकते हो, अगर वो मिसचिफ हो रहा है, उसने जो कैबिनेट मिनिस्टर है उसने किसी को बैड वर्ड बोला, कि लेडी को कुछ बोल दिया, तो ही कैन एबल टू डू दैट, पावर है, तो वो बाद में कोर्ट में नहीं जा सकता है, अरे तुमने मुझे क्यों ऐसा किया, तो ऐसा नहीं है, उसमें सुप्रीम पावर है उसके पास, बरोबर है, मतलब ऑब्वियसली रीजन जस्टिफाई होगा, होना ही चाहिए, बट सेम टाइम वो उसको अगेंस्ट नहीं जा सकता है, कोर्ट में नहीं जा पाएगा, उसको 10 दिन सस्पेंड ही रहना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट ना, ऐसा बहुत सारे पावर रहेंगे, वो लिस्ट होगा तो अभी अपने को है नहीं, तो यू डोंट हैव टू वरी। इलेक्शन कैसे होता है स्पीकर का, तो द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द ओन मेंबर सून आफ्टर द न्यूली इलेक्टेड हाउस, तो हमारा बीजेपी जीत गया समझो, या कांग्रेस जीत गया, तो वो लोग अपने में से, मतलब मेंबर्स में से बोलेंगे, हाँ भाई चलो ये पर्सन हमारा स्पीकर है, वैसा। फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन द हाउस इज डिसॉल्व, स्पीकर डज नॉट वैकेट ऑफिस, मतलब अगर हाउस खत्म हो गया तो उसका जो टर्म रहेगा, वो टर्म तक वो काम कर सकते हैं, बरोबर है। ही और सी रिमेन इन द ऑफिस टिल न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड, तो अभी समझो फॉर एग्जांपल बीजेपी है, टुमारो नाउ आ गया फॉर एग्जांपल कांग्रेस पावर में, तो अभी वो पीरियड में जो बीच में गैप है, वो टाइम पे हमारा जो भी सेशन चल रहा है, तो उसके टाइम में यही स्पीकर रहेंगे बीजेपी के, जब तक कांग्रेस अपना नया स्पीकर इलेक्ट करके नहीं रखेगा, ऐसा करके वो, मतलब वैकेंट नहीं होगा, टेम्पररी, वो ऐसा नहीं बोल सकते, लीड कौन करेगा, नहीं तो फिर वहां पे कौन देख रेख रखेगा, जैसे आपका टीचर नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली नहीं पढ़ोगे, वैसे तो काम ही नहीं होगा। द स्पीकर इज इलेक्टेड फॉर ए टर्म 5 ईयर, ये टर्म याद रख लेना, स्पीकर का टर्म 5 ईयर है। ही कैन सीक अ री इलेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स इफ ही और सी इज इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द लोकसभा, ठीक है, वो कुछ नहीं। द स्पीकर में रिजाइन फ्रॉम, अच्छा उसको, उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, ही कैन एबल टू गिव द रेजिग्नेशन, ठीक है, और वो उनका खुद की तरफ से हुआ, अच्छा उन्होंने कुछ मिसचिफ हुआ है, उन्होंने कुछ गवर्नमेंट के साथ कुछ गफला किया है, तो उसने बोला लोकसभा स्पीकर कैन ऑल्सो रिमूव, ऐसा नहीं है कि वो खुद रीजन देंगे, सामने वाला भी निकाल सकता है, कौन, द लोकसभा, इफ द मेजोरिटी ऑफ मेंबर पास अ रिजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट, और सब लोग ने मिलके, मेजोरिटी ने बोला कि भाई हमको ये स्पीकर नहीं चाहिए, ही मीड सम मिसकंडक्ट, तो वो उनको निकल जाना पड़ेगा, तो वो पावर लोकसभा के मेंबर के पास भी है, ऐसा नहीं है कि वो
उनके पास ही पावर है, वन साइड नहीं रहता है। उन्होंने एक पोजीशन रख दिया डेप्यूटी स्पीकर, समझो इनका हेल्थ खराब हो गया तो अभी कौन है सब्स्टिट्यूट, तो डेप्यूटी स्पीकर सेकंड पोजीशन, बरोबर है। अगर ये नहीं है उनके एब्सेंट में डेप्यूटी स्पीकर काम करेंगे, बस उतना ही है इसके अंदर। और उनको भी निकालना वही सेम प्रोसीजर, लोकसभा के मेंबर उसको निकाल सकते हैं। ये पूछ सकते हैं रोल एंड फंक्शन ऑफ द स्पीकर, क्या रोल है, तो ऑब्वियसली वो लीड करेगा, बरोबर है, प्रिसाइड करेगा ओवर द मीटिंग, स्पीचेस, रिमार्क्स एड्रेस टू द स्पीकर। देखो मैंने लिखा ऑल स्पीचेस एंड रिमार्क्स आर एड्रेस टू द स्पीकर। मुझे किसी को बोलना है, मैं डायरेक्ट नहीं बोलूंगा, मुझे कविश को बोलना है तो आई कैन नॉट टॉक डायरेक्टली टू कविश, मैं बोलूंगा माननीय सभा महोदय, आप कविश को बोलिए कि कविश का ये जो पॉलिसी है उसके बारे में हमको बताए, तो कभी इसको वापस बोलना है कि सभा महोदय हमारी पॉलिसी ये है, ऐसा इनडायरेक्ट। ही सी अलोट टाइम फॉर डिस्कशन, और टाइम बहुत ज्यादा ले लिया, वो बोले कि बस हो गया, बिकॉज एवरीबॉडी वांट टू डिस्कस, तो एक बंदा पूरा टाइम नहीं ले सकता है, तो ही कैन प्लीज है ना 10 मिनट में तुम तुम्हारा डिस्कशन कंप्लीट करो, ऐसा। स्पीकर इंटरप्ट द रूल्स, interprets the rules of the procedure of the house, he or she decision all parliamentary matter is final, तो उनका डिसीजन जो है वो फाइनल रहता है, ठीक है। और जो भी रूल्स है वो बताएंगे, आप ये रूल्स है, वो इंटरप्रेट करेगा जो रूल है वो, और अकॉर्डिंग टू दैट हाउस को चलाएगा। ऑल बिल पास बाय द हाउस आर साइन बाय द हिम, जितना भी बिल है, अभी देखो कल ही आपको पता नहीं रहेगा, एक वक्फ बोर्ड करके, वक्फ बोर्ड उसका एक बिल पास हुआ, वो उनका कुछ लैंड के रिलेटेड है, तो उसमें ऐसा हुआ यस्टरडे ओनली 288 मेंबर ने एग्री किया और 232 मेंबर ने ना बोला, ऑपोजिशन में था, और 288 मेंबर ने हाँ बोला, तो वो 288 है, मेजोरिटी है, वो पास हो गया बिल, बरोबर है। तो एक बिल नया पास हुआ, अगर आपको चाहिए तो देख लेना। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर है ना, आपको पता होना चाहिए। वक्फ बोर्ड ऐसा कुछ है, हाँ ये ना, ये देखो ये लोकसभा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। लोकसभा पासिस वर्क बिल आफ्टर हाउस, आफ्टर आवर्स लॉन्ग डिबेट, बहुत डिबेट हुआ, एट द एंड क्या हुआ, जो पास हो गया, वो लोग ने जो मेजोरिटी है उसकी वजह से देखो आया भी रहा, देखो ये रहा, लोकसभा पास वर्क बिल इन द अर्ली आवर्स ऑफ थर्सडे, थर्सडे मतलब आज ही हुआ, इनफैक्ट कल भी नहीं, सी April 3 after an 12-hour long debate with 288 members voting for it, 232 voting against. See, जो हम डिस्कस करें ना ये टॉपिक सेम यहाँ पे आज की बात है, रिसेंट लिखा भी है, द आवर्स लॉन्ग डिबेट शो द रूलिंग एनडीए डिफेंडिंग लेजिस्लेशन एज बेनिफिशियल फॉर माइनॉरिटी। तो कोई ऐसा बोल रहा है, एक कुछ तो अलग का लॉ है लैंड के रिलेटेड, तो बीजेपी बोल रहा है कि उनके फायदे के लिए है, कांग्रेस बोल रहा है कि नहीं, कांग्रेस मतलब ऑपोजिशन वाले कि भाई उसके नुकसान के लिए ये बिल पास नहीं होना चाहिए, रूल पास नहीं होना चाहिए। कोई आया नहीं ना। सी दिस इज व्हाट हैपेंड जस्ट नाउ, देखो ये वो ये बिरला जी है, देखो ओम बिरला, ये आपका लाइव है, वो पास हुआ रहेगा ना उसका वीडियो है, ठीक है, ये थोड़ा देख लेने का। स्पीकर डिसाइड अच्छा लिखा है उनका साइन होना चाहिए तो ये बिल पास होगा, फिर वो कहाँ जाएगा, सेंड टू राज्यसभा फॉर हिज कंसिडरेशन और टू बी प्रेसिडेंट फॉर एसेंट। प्रेसिडेंट फॉर एसेंट मतलब क्या है, वो चेक करने के लिए, चौथा पॉइंट है ना, मतलब बेसिकली वो बरोबर है कि नहीं वो चेक करने के लिए, मतलब बिल में कोई खामी नहीं है वो चेक करने के लिए प्रेसिडेंट के पास जाता है, बरोबर है। मतलब स्पीकर साइन करेंगे, देन राज्यसभा में जाएगा, उसमें कुछ अमेंडमेंट करना है, कुछ उनके एडवाइस है वो देखेंगे, देन इट विल गो टू द, और या तो भी प्रेसिडेंट के पास जाएगा चेकिंग करने के लिए वो बरोबर है कि नहीं, बिकॉज प्रेसिडेंट इज हैविंग अ सुप्रीम पावर। स्पीकर डिसाइड एडमिसिबिलिटी ऑफ द ऑल क्वेश्चन। अच्छा ये भी है, अगर मैंने ऐसा कविश को बोला कि भाई आप मुझे आपकी पॉलिसी के बारे में बताओ, अगर वो क्वेश्चन रिलेटेड नहीं रहेगा तो स्पीकर उधर से मना कर देगा कि दिस इज नॉट रिलेटेड टू हाउस, वो आपका इररिलेवेंट क्वेश्चन है, बरोबर है, वैसा आप बोल सकते हो। तो उनके हाथ में पावर है क्वेश्चन को खारिज करना, मतलब डिसमिस करना। ही डिसाइड द एडमिसिबिलिटी ऑफ मोशन ऑफ एडजर्नमेंट, he or she puts the issue to vote and announce the result
मतलब अगर कोई भी देखो ये आया ना 2 वोट आया ना, ये 288 232, तो वोट के लिए गई वो सिचुएशन में, वोट किया सब लोग ने, तो उनके हाथ में इश्यू द वोट एंड अनाउंस द रिजल्ट। फिर बोलेंगे अच्छा ये नंबर 288 बिलोंग्स टू रूलिंग पार्टी, मतलब ये बिल पास हुआ है। तो वो सब जो काम है वो स्पीकर करेंगे। द स्पीकर डज नॉट वोट इन द हाउस, तो बोला अब ये 288 232 हुआ ना, उसमें उन्होंने वोट नहीं किया है, बट जब भी 250 250 हो गया दैट्स से, तो तभी जब भी इक्वल हो गया देन ही कैन एबल टू वोट। उनको जहाँ वोट करना है, उनको जो लगेगा कि उनके हिसाब से क्या करेक्ट है बिल में, वो पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो उनके हाथ में जहाँ पे भी वोट करना है वो। ठीक है, तो लिखा है एक्सेप्ट व्हेन देयर आर इक्वल वोट ऑन द बोथ साइड। ठीक है, लाइक द ट्रेजरी बेंचेस एंड द ऑपोजिशन, मतलब ट्रेजरी बेंच मतलब जो रूल कर रहा है वो, और ऑपोजिशन मतलब आपका ऑपोजिट वाले। अगर ये दोनों के बैलेंस हो गए, इक्वल हो गए, देन स्पीकर हैज टू वोट, तो आपका रिजल्ट आएगा। नहीं तो बिल का क्या करने का, अगर इक्वल हो गया चलो, देन अभी वो बिल पास होगा कि नहीं होगा, वो गड़बड़ हो गई ना, तो एक वोट लगेगा, वो वोट किसका लेना है, तो स्पीकर का। बरोबर है, ये देख लेना, ये पूछ सकते हैं। द स्पीकर डिसाइड वेदर बिल इज अ मनी बिल और नॉट, तो बिल होता है मनी बिल, मतलब हमने देखा जो टैक्स के रिलेटेड, ओके, जो भी पैसे के रिलेटेड जितने भी इश्यूज है वो मनी बिल है कि नहीं। क्यों मनी बिल है ना, दैट कैन बी डिस्कस इन लोकसभा, तो वही लोकसभा में डिस्कस कर सकते हैं, तो मनी बिल है कि नहीं वो डिसाइड करते हैं। तो याद रखो इजी पॉइंट है, 2-3 पॉइंट पूछ लिया तो आ जाएगा। तो ये आपका कौन सा फंक्शन था वो देखो, बिजनेस ऑफ द हाउस, बराबर, ये बिजनेस ऑफ द हाउस पूछा तो ये पॉइंट आएंगे। फिर उन्होंने बोला एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, डिसिप्लिनरी फंक्शन, देन मिसलिनियस फंक्शन और पार्लियामेंट्री कमेटी, ये 4 पॉइंट आप आगे और है। फिर ये लोकसभा खत्म हो जाएगा, फिर राज्यसभा आएगा। हाँ बोलो। सर पढ़ो। हाँ जी। Disciplinary function. The speaker नहीं maintains एक order मिनट in the house. बेटा, ये बाकी है बेटा, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। Administrative functions. The speaker receives all petitions and documents in the house. He or she communicates all the decisions of the house to the आपका current आवाज, authority. देशान आवाज ब्रेक हो रहा है वापस, क्या है सेकंड लॉट में क्यों ऐसा होता है, फर्स्ट लॉट अच्छा जाता है। अरे सर वो पता नहीं है हाँ बात रहता है कभी। हाँ ठीक है, और कोई बोलो फिर। दीप, सर अभी आ रही है अच्छे से। यस सर। अभी देशान रहने तो ब्रेक हो रहा है। दीप कैसा गया पेपर, हाँ अच्छा गया अभी, पक्का। मतलब ऐसा फुल तो नहीं आ रहा है, हाँ पर अच्छा गया। अरे वो मेरे को मोड और वो समझा ही नहीं, तो मोड अपने अब किया ही नहीं था, तो मेरे को पता ही नहीं था क्या नहीं था नहीं मोड। किए हुए थे, ये बोर्ड में पूछा हुआ सम है भाई। क्या मोड वाला? तो लास्ट ईयर बोर्ड में पूछा है ये क्वेश्चन, सेम टू अच्छा, सेम क्वेश्चन है, आपको दिखाऊंगा आज। ठीक है। तो मेरा उसमें एक गया, और फिर मैंने, मेरे को तो पहले पता ही नहीं था कि मतलब क्या बोलते ऑप्शन में था क्वेश्चन, तो मैंने पूरा पेपर ही कर दिया। फिर पता चला, तो लास्ट वाला थोड़ा छूट गया था। हाँ ठीक है फिर चल। पता मैं किधर से पढ़ना है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। भाई तेरा भी तो आवाज ब्रेक ही हो रहा है दीप, तू क्या बोलेगा, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है दीप बेटा। और हेलो। कोई? हाँ अभी बोल। हाँ अ, पढ़ो, अच्छे से एक बार। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। एनीबॉडी एल्स, कविश, काव्य, धनेशा। हाँ सर। आप धनेशा बोलो। हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव है ना। हाँ जी। हाँ. The speaker receives all the petitions and documents in the house. Second, he or she communicates the decision of the house to the concerned authorities. He or she regulates the admission of visitors and press correspondence to the galleries of the house. Disciplinary functions. The speaker maintains order in the house. When member becomes unruly, he or she may order them to withdraw. He may suspend a member if he or she disregards the authority of the chair. In case of grave disorder, he or she can adjourn the house. In case of the words used by the members are indecent or unparliamentary, the speaker may order that such words to be expunged from the proceedings of the
House. The Speaker decides whether there is a case for a matter relating to a breach of a privilege or contempt of the House. In regard to a question where a member of a Lok Sabha stands disqualified under the anti-defection law, the question shall be referred to the decision of the Speaker. The Constitution says that the Speaker decision shall be final and no court shall have any jurisdiction in this regard. Parliamentary committees. The Speaker is the ex officio chairman of some of the committee of the House. Sir, थोड़ा ऊपर करो ना. हाँ लो And the Business Advisory Committee and the Rules Committee. He or she appoints chairman of all the committee of the House. He or she issue directions to the chairman in all the matter relating to their working and procedure to be followed. Miscellaneous functions. The Speaker presides over the joint session of both the Houses of Parliament. In consultation with the chairman of Rajya Sabha, he or she nominates personnel for parliamentary delegations to various countries. He or she presides over the conference of presiding officers of legislative bodies in India. Rajya Sabha. रुक जा राजेश बाद में करते हैं हाँ. आप भी पढ़ना लेकिन Hmm. तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन पूछ सकते हैं राइट डाउन एनी टू एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ स्पीकर तो स्पीकर रिसीव ऑल पिटीशन पिटीशन मतलब जो भी प्रॉब्लम है कोई इशू है तो उनके पास एक एप्लीकेशन बेसिकली एंड डॉक्यूमेंट इन द हाउस सी और ही और सी मतलब ऐसा लिख रहे हैं बिकॉज कोई मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है ना स्पीकर कम्युनिकेट द डिसीजन ऑफ द हाउस टू द कंसर्न अथॉरिटी अगर कुछ भी चीज उनके पास आया अगर समझो इट इज रिलेटेड टू पुलिस तो पुलिस को रिफर करेंगे इफ इट इज रिलेटेड टू सम कोर्ट तो कोर्ट को बोलेंगे कि ये कोर्ट आपको देखना है मतलब हाई कोर्ट को बोलेंगे कि हाई कोर्ट ये दिस मैटर इज रिलेटेड टू मतलब आपके रिलेटेड है यू टेक सम डिसीजन ऑन दैट वैसा करके वो राइट अथॉरिटी को एड्रेस करेंगे ही और रेगुलेट द एडमिशन ऑफ विजिटर्स एंड प्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस टू द गैलरीज ऑफ द हाउस मतलब कोई भी विजिटर है या प्रेस के रिलेटेड कुछ भी कम्युनिकेशन करना है तो वो बेसिकली विल लुक आफ्टर दैट वो एग्री करेंगे वो अप्रूव करेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हो तो एक पावर है उनको दिया हुआ एडमिनिस्ट्रेशन का डिसिप्लिनरी में तो बहुत सारा है उन्होंने बोला है मतलब जो भी गड़बड़ करोगे तो लिखा है कि उन्होंने कुछ गलत वर्ड बोला किसी को बैड वर्ड बोला स्पीकर को कुछ बोल दिया या हाउस के रिलेटेड कुछ बोला कोई पार्टी को मिसलिनियस वर्ड बोले तो वो नहीं चलता है बरोबर है मेंटेन ऑर्डर विड्रॉ ये बोला व्हेन द मेंबर्स बिकम अनरूली ही और मे ऑर्डर देम टू विड्रॉ ही मे सस्पेंड अ मेंबर मैं आपको पहले ही बोला मेंबर को सस्पेंड कर सकते हो नेक्स्ट कॉन्वर्जेशन में डिस्कशन में शामिल नहीं हो पाएगा अगर उन्होंने सस्पेंड किया बहुत बार होता है ये he or she disregard the authority of chair in case of grave disorder he or she can adjourn the house अगर ज्यादा हो रहा है तो हाउस को भी एडजर्न कर लेंगे मतलब अभी बोलेगा अभी डिस्कस नहीं करना है छोड़ दो अभी ये टॉपिक इधर ही छोड़ो वी विल नॉट डिस्कस एट ऑल तो बंद कर सकते हो टॉपिक को ये सब पावर उनके पास है इन केस ऑफ द वर्ड यूज बाय द मेंबर इन डिसेंट ऑन पार्लियामेंट्री मतलब यूज नहीं कर सकते वैसे वर्ड अगर उन्होंने यूज किया किसी को गलत ब्लेम किया कोई फीमेल कैंडिडेट को कुछ भी बोल दिया बरोबर है तो गलत अगर यूज हो रहा है तो वो द स्पीकर में ऑर्डर दैट सच वर्ड टू एक्सपंज मतलब निकाल देने का उसको यूज मत करो फ्रॉम द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस मतलब ये क्या होता है यू नो दैट कि ये सब रिकॉर्ड होता है व्हेनेवर यू डिस्कस ना देयर इज बीच में आप देखोगे ना एक टीम बैठी रहती है वो टीम क्या करेगी फटाफट एक टाइपिंग करते हैं स्टेनो रहता है वो लिखते हैं देन एवरीथिंग विल बी रिकॉर्ड वो रिकॉर्डिंग होती है पूरा एक 8-10 लोगों का टीम रहता है यहाँ पे दिखा है कि नहीं हाँ ये देखो यहाँ अगर आप देखोगे ना तो ये देखो ये बीच में जो ये दिख रहा है ना आपको ये स्पीकर है उनके नीचे ये लोग बैठे 8-10 लोग बैठे रहते हैं तो ये सब जो कॉन्वर्जेशन होते हैं ना सब टाइपिंग होते हैं एक एक वर्ड डिस्कस हुआ है ना वो लिखते वो लोग रिकॉर्ड होता है एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड आपको लास्ट 25 साल का भी रहेगा ना वो सब रिकॉर्डिंग मिलेगा बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तो बोला कि ऐसा सब चीजें वो यहाँ से मतलब वो बोलेंगे कि इसको आप डोंट रिकॉर्ड इट अगर कुछ गलत बोला हुआ है या कुछ भी गड़बड़ हुई है तो रिकॉर्डिंग करने के लिए अलाउ नहीं करते मतलब वो गलत है ना अपना ये बंधारण में लिखा हुआ है वो सब आप गलत चीज भी लिखोगे तो इट्स गुड बैड फॉर दिस थिंग यू नो कॉन्स्टिट्यूशन वैसा The speaker decide whether there is a case for a matter relating to breach of privilege or contempt to the house. वो डिसाइड करेंगे कि अगर आपने कुछ गलत बोला है आप ऐसा बोलोगे नहीं नहीं ये तो बरोबर है मेरे हिसाब से तो बरोबर है तो वो ऐसा नहीं चलेगा मतलब वो बोलेंगे स्पीकर डिसाइड करेगा
कि कंटेम्प्ट ऑफ हाउस है कि नहीं, गलत आपने डिसाइड किया है कि नहीं, गलत बोला है कि नहीं, वो स्पीकर विल डिसाइड, ठीक है, पावर उसके पास रहेगा इन रिगार्ड। और आपको पहले ही बोला यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट, आपका जो है वो आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते हो, स्पीकर की डिसीजन फाइनल डिसीजन। इन रिगार्ड टू क्वेश्चन वेदर मेंबर ऑफ लोकसभा स्टैंड डिसक्वालिफाइड, अच्छा ये एंटी डिफ्लेक्शन लॉ है ना, ये ऐसा है कि जैसे अभी बहुत लोग क्या करते हैं, पार्टी चेंज करते रहते हैं फ्रीक्वेंटली। मतलब इसमें एक केस था कि एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था उसने एक ही दिन में 4 बार पार्टी चेंज किया। मतलब पहले वो बीजेपी में था, देन ही हैज गॉन टू कांग्रेस, फिर वो कोई दूसरी पार्टी, वैसा वो बार बार पार्टी चेंज करते हो, विच इज नॉट परमिटेड। अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उनको आप सस्पेंड कर सकते हो, ऐसा करके एक लॉ है, ठीक है, उनको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। तो बट इट इज नॉट गुड ना, यू हैव टू बी स्टक विद समबडी। आप बाद में क्या होता है, वो लोग पैसा देते हो दूसरी जगह चला जाएगा, या जो भी उनकी मॉनेटरी हेल्प करते हैं, मॉनेटरी लालच देंगे तो चला जाता है दूसरी पार्टी में। तो आपका जो प्रोसेस है या आपको कोई डिसीजन है, लोग बिल पास हो रहा है, उसमें आपको प्रॉब्लम होएगा। सो दिस इज नॉट गुड, बरोबर है, वो हमारे लिए खतरा है। The question shall be referred to the decision of the speaker. The constitution say that speaker's decision shall be final. No court shall have any jurisdiction in this regard. मतलब कोई भी कोर्ट स्पीकर को चैलेंज नहीं कर सकता। अभी स्पीकर ने बोल दिया कि भाई बार बार पार्टी चेंज कर रहा है, नाउ ही शुड बी सस्पेंड फॉर सर्टेन डेज, तो कोर्ट में नहीं जा सकते हो। बराबर बार बार उन्होंने बोला है, देखो आप कोर्ट में स्पीकर के डिसीजन के अगेंस्ट नहीं जा सकते, उनका फाइनल होगा। ये भी कुछ रीड लिखा है, फिर भी देख लेते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी, द स्पीकर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सम ऑफ द कमेटी ऑफ द हाउस। मतलब वो आई थिंक वो कविश ने उस दिन बोला ना, एक्स ऑफिशियो मतलब और भी कोई पोजीशन में रह सकता है, जैसे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है एंड माइट बी ए स्पीकर भी है, वैसा मतलब वो दो, उनका एक कहा ना कहा पोजीशन रहता है, रह सकता है, ऐसा नहीं है कि रहेगा ही, रह सकता है। सच एज बिजनेस एडवाइजरी कमिटी एंड रूल्स कमिटी, मतलब देखो बिजनेस एडवाइजरी कमिटी में भी वो है एंड ही मस्ट बी स्पीकर। तो उनका जो नॉलेज है, उनका जो क्या बोलते हैं, वो उनको हमारी गवर्नमेंट को आप फायदे में दे सकते हो, मतलब 2-3 पोजीशन दे के उसको यूज कर सकते हो। ही और सी अपॉइंट चेयरमैन ऑफ ऑल द कमिटी ऑफ द हाउस, तो जो भी कमिटी है उसके चेयरमैन को अपॉइंटमेंट उनके हाथ में है। He or she issue direction to chairman to all matter relating to their working and procedure to be followed. तो chairman को सब बताएंगे how you want to, मतलब how you require to follow the system, वो guidance देंगे, बेसिकली गाइड करेंगे, उनके पास इतना नॉलेज है, पावर है, तो इट विल हेल्प कॉन्स्टिट्यूशन को, गवर्नमेंट को हेल्प होगा। मिसलिनियस फंक्शन, और स्पीकर प्रिसाइड ओवर जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, प्रिसाइड करेंगे in constitution with chairman of the Rajya Sabha, he nominate personal for parliamentary delegation to various country। मतलब क्या होता है, अभी समझो कोई गवर्नमेंट का लाइक हम लोग एक कोई प्लांट लेके आ रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना है हम लोग को, ठीक है, तो हमारा एक डेलीगेशन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, तो वो क्या बोलेंगे कि भाई ये 4 लोग है ना, समझो कविश, काव्य, कृदय, खुश, ये लोग एक डेलीगेशन है, दे आर वेरी गुड इन यू नो स्टडी, वो सब्जेक्ट में वो मास्टर है, तो उनको बोलेंगे कि तुम जाओ यूएस एंड नाउ स्टडी रिलेटेड टू न्यूक्लियर पावर प्लांट, कैसे कर सकते हो हम लोग, वो पूरा एक, तो जो टीम बनाना है डेलीगेशन का बनाने के लिए, वो बोल सकते हैं कि आप जाके ये डेलीगेशन एक हम फॉर्म कर रहे हैं रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट, और आप जाके वो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करो, ठीक है, वैसा करके बोला, तो वो पावर उनके पास है। He or she preside over the conference of presiding officer of legislative body in the India। तो he or she preside over conference, तो कोई कॉन्फ्रेंस है वो भी वो प्रिसाइड कर सकते हैं, कोई भी कॉन्फ्रेंस है, अभी कोई फॉरेन में कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो ही कैन एबल टू बी, वो इंडिया के बिहाफ में प्रेजेंट हो सकते हैं, वैसा करके। भैया रीडिंग है, मेरे हिसाब से पूछेंगे नहीं, तो आप देख लेना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव और डिसिप्लिनरी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी रीड वाला मुझे नहीं लग रहा है कुछ पूछ सकते। नौ राज्यसभा करो। हाँ सर। Rajya Sabha. The upper house or the Council of States is known as the Rajya Sabha. It represents the Federation of the States of India Union. Composition. The maximum strength of Rajya Sabha can be 250 members. The members fall in two categories.
nominated and elected. Nominated members. They are nominated by the president from among persons having special knowledge or practical experience in matters such as literature, science, art, and social services. The nominated members are 12 in number. The principle of nomination is aimed at having distinguished persons in the upper chamber. In the past, many eminent persons have been nominated by the president to the Rajya Sabha, like Raja Ramana, nuclear scientist Mrinal Sen, film producer Hema Malini, actress Kartar Singh Duggal, writer and Nirmala Deshpande, social worker. Elected members. 238 members are elected by the states in the union. The allocation of seats among the states is not equal, as this would be undemocratic. Seats are allocated to the states and the union territories on the basis of their population. Thus, Uttar Pradesh is represented in Rajya Sabha by 31 members, Punjab sends 7 members, and Goa, Manipur, Meghalaya, and Mizoram 1 each. The Union Territory of Delhi sends 3 members, whereas Puducherry sends 1 member, and Jammu and Kashmir sends 4 members. Election. The representative of each state in the Rajya Sabha are elected by the elected members of the Legislative Assembly of each state in accordance with the system of proportionate representation by the means of a single transferable vote. The representatives of the Union Territories are chosen in such a manner as the Parliament may prescribe. The 3 representatives from the Delhi are elected by the member of a Legislative Assembly. Term. The Rajya Sabha is a permanent house. It cannot be dissolved like the Lok Sabha. Each member of the Rajya Sabha is elected for a period of 6 years. One third of the total members of the house retire after every 2 years. Members can be re-elected if they so desire and if their electors support them. Qualifications for the member. Qualification and disqualification for the membership of the Rajya Sabha are same as those for the membership of Lok Sabha, except that of the age criteria. The minimum age for the contesting election for the Rajya Sabha is 30 years. The qualification for the membership of Rajya Sabha are given below. He or she should be an Indian citizen. He or she should be at least 30 years of age. He or she should have his name in the electoral rolls in the some part of the country. He or she should not be an insolvent, that is, he or she should not be in debt or should have the ability to meet his her financial commitments. He or she should not hold any office of profit under the government. He or she should not be a proclaimed criminal. He or she should not be of unsound mind. वो वो भी पढ़ू क्या? हाँ इतना पढ़ लो ना, डिस्क्वाली प्रेसिडिंग ऑफिसर तक पढ़ लो बस. Huh. Disqualification of members, same condition for Lok Sabha. Presiding officers. The Vice President of India is the ex-officio chairman of the Rajya Sabha. He or she presides over its meeting. He or she cannot vote on any issue discussed in the House, as he or she is not its member. However, in case of a tie, he or she exercises his or her casting vote. Second, in Rajya Sabha, the Rajya Sabha elects a deputy chairman from among its members. In the absence of the chairman, he or she performs all the functions and duties of the chairman. ओके तो अभी कहाँ था हम लोग का? हाँ राज्यसभा ना. हाँ. क्या है, अपर हाउस है बराबर. अपर हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट इज नोन एज राज्यसभा. उसके अंदर क्या है, इट रिप्रेजेंट द फेडरेशन ऑफ स्टेट. फेडरेशन मतलब बहुत सारे स्टेट मिलके एक पूरा बनाते हैं बराबर. अलग अलग स्टेट रहता है उसके अंदर. हम लोग ने देखा था, मैंने बोला भी था कि ये ऐसा रखने का, फेडरल सिस्टम रखने का वो एक कारण है मेन, कि समझो गुजरात है, यूपी है, तो यूपी का जो रिलीजियन, उसके जो वहाँ के जो लोग हैं उनको समझना इज इजी फॉर दैट पर्टिकुलर चीफ मिनिस्टर. वहाँ के जो लीडर है वो इजीली समझ पाएंगे. गुजरात का जो कॉम्पोजिशन है, गुजरात के जो लोगों का टेस्ट है, उनका जो समझो ग्रोथ है, वो उनके लोकल मेंबर इजीली कर पाएंगे. तो वो दिल्ली में बैठ के वो नहीं समझ पाएगा गुजरात में क्या चाहिए. इसके लिए उन्होंने क्या किया, उसको ब्रेक कर दिया. सो इट विल बी इजी टू फंक्शन. तो इसके लिए राज्यसभा में वहाँ पे काम होता है. मैक्सिमम नंबर आप देख लो 250. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ना, 238 एंड 12 लिखा है यहाँ पे. 12 लोग कौन हो गए, जो द प्रिंसिपल ऑफ नॉमिनेशन एम टू हैविंग डिस्टिंग्विश्ड पर्सन इन अपर चैम्बर. इन द पास्ट मैनी एमिनेंट पर्सन. कौन थे जो 12 लोग, कौन प्रेसिडेंट सिलेक्ट करता है, कौन हो सकता है. उन्होंने बोला कोई लिटरेचर से आएगा. लिखा है यहाँ पे लिटरेचर, वो सब नहीं लिखा. हाँ लिखा है ना यहाँ पे, लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस. यहाँ पे जो अच्छा काम करते हैं, लिटरेचर बहुत अच्छा कोई लिखा हुआ है किसी ने अच्छे से, साइंस में कोई एक्सपर्टाइज है, कोई साइंटिस्ट है,
तो उनको आप नॉमिनेट कर सकते हो ये 12 मेंबर में। हाँ, जैसे या क्रिकेट में किसी ने दिया हुआ है, स्पोर्ट्स भी आता है, सचिन तेंदुलकर थे ना, इसमें लिखा नहीं है, हेमा मालिनी एक्ट्रेस लिखा हुआ है यहाँ पे। एनीवे याद रखना 12 लोग का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। इलेक्टेड मेंबर कौन है, तो 238 मेंबर है इलेक्टेड बाय द स्टेट इन यूनियन। यूनियन वाले जो है तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया ये, बराबर। हम जो एमपी को सिलेक्ट करते हैं वो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पे रखते हो। अलोकेशन ऑफ द सीट अमंग द स्टेट इज नॉट इक्वल। सब ऐसा नहीं है कि समझो 25 स्टेट है तो हर एक जगह पे दो दो लोग रखना है या तीन तीन, ऐसा नहीं है। बिकॉज इट इज अनडेमोक्रेटिक। मतलब अगर गोवा में छोटा सा है 10,000 का पॉपुलेशन, यूपी में 5 लाख का पॉपुलेशन, तो लीडर दोनों इक्वल नहीं हो सकते। इट बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। हाँ, पूछ सकते हैं कौन से बेसिस पे होता है वो, तो पॉपुलेशन वर्ड याद रख लेना, दैट्स इट। यूपी रिप्रेजेंटेड लिखा है अलग अलग, राज्यसभा में 31 मेंबर है बिकॉज हाईएस्ट है, मोस्ट पॉपुलेटेड, ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पे। और गोवा मिजोरम छोटे छोटे स्टेट है, एक एक है वहां पे, तो ये नंबर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है शायद। पंजाब 7, गोवा मणिपुर मेघालय मिजोरम 1, तो याद रख लेना, पूछा तो ठीक है। इलेक्शन कैसे होता है, तो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट इन राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय the elected member of legislative assembly of each state in accordance with the system of proportional, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब ये क्या होता है, मैंने आपको 9th में दिखाया था। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है पता है किसी को? ये लोग कॉमर्स वाले को तो मैं बोला ऑलरेडी। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ऐसा है कि समझो मैंने, ऐसा है वो आपको थोड़ा देख 2 मिनट दे दो आप। अगर ऐसा है समझो मेरा मुझे वोट देना है तो मैं क्या करूंगा, 3 लोगों को मुझे वोट देना पड़ेगा प्रायोरिटी वाइज। मतलब मैंने पहले समझो ये कविश है, ये समझो दियांश है, और ये समझो निहार है लेट्स से। तो मैंने वोट दिया पहले दियांश को, फर्स्ट वोट मेरा दियांश को जाएगा, ये मेरा फर्स्ट वोट। सेकंड वोट मुझे मेरा कविश को गया, थर्ड वोट मेरा गया निहार को, ऐसा। तो ये तीनों में से फिर सबने ऐसा वोटिंग किया, और बाद में समझो दियांश का जो वोटिंग रेशियो है ना वो 50% से कम है, कम से कम 50% होना चाहिए। अगर 50% से कम लोगों ने दियांश को वोट दिया है देन ये मेरा वोट ये नहीं कंसीडर होगा, इट विल गो टू द कविश। फिर देखेंगे कविश को कितने वोट मिले, तो वैसा करके एक कैलकुलेशन है विच इज वेरी कॉम्प्लेक्स, उसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब आपको 3 लोगों को वोट देना है और प्रायोरिटी वाइज, बस उतना याद रखो तो भी चलेगा, ठीक है। Then the 3 representatives from Delhi are elected by the members of legislative assembly, ठीक है। ये याद मत, टर्म है 6 ईयर, ओके 6 ईयर का टर्म याद रख लेना राज्यसभा का। उधर 5 साल है लोकसभा में, हियर 6 ईयर। और 1/3 ऑफ मेंबर, मतलब जितने भी मेंबर उसमें 1/3 ऑफ मेंबर आर हाउस रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर। एवरी 2 ईयर में वो रिटायर होगा 1/3 मेंबर, फिर वो नया सिलेक्शन होगा। मेंबर कैन बी री इलेक्टेड, अगर उनको वापिस जाना है तो वापिस सिलेक्ट होके आना है, बराबर है वैसा है। अगर वो उन्होंने उनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनमें उन्होंने वापिस उसको इलेक्ट किया, ही कैन अगेन सीट, बट वापिस इलेक्शन होता है। तो एवरी 2 ईयर उनको रिटायर हो गए, 1/3 ऑफ मेंबर रिटायर होते हैं एवरी 2 ईयर्स। याद रखो री इलेक्शन हो सकता है, वापिस वो पोजीशन में आ सकते हैं। क्वालिफिकेशन बहुत इजी है, आपको आना चाहिए 30 ईयर एज क्राइटेरिया याद रख लेना। वहाँ पे 25 साल है लोकसभा में, यहाँ पे 30 ईयर, बाकी सब सेम टू सेम है। इंडियन सिटीजन होने चाहिए, कुछ उनके ऊपर ये प्रोक्लेम क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड पागल नहीं होने चाहिए वो, तो वो सब क्राइटेरिया है। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस, आपने बोला था, और कोई पोजीशन गवर्नमेंट की नहीं होनी चाहिए, वैसा करके है। इनसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, मतलब आपके सिर पे 100 करोड़ का लोन है, 10 करोड़ का लोन है तो वो नहीं चलेगा। गवर्नमेंट से कोई चीटिंग नहीं करनी चाहिए आपको, तो आप ये बन सकते हो, राज्यसभा के मेंबर बन सकते हो। उन्होंने बोला डिस्क्वालिफिकेशन जैसे लोकसभा में वैसा है, वो देख लेना। लोकसभा में डिस्क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है सेम यहाँ पे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भाई क्या आवाज कर रहे हैं। The Vice President of India is the ex officio chairman of Rajya Sabha. He preside over the meetings. तो वाइस प्रेसिडेंट है वो इसको प्रिसाइड करते मीटिंग्स को। He cannot vote on any issue discussed in the, उनका वोटिंग नहीं करना है, as he is not a member
However, in case of tie, वापिस वही आया, टाई है, इक्वल है, तो वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं. Then the राज्य सभा इलेक्ट्स अ डेप्यूटी चेयरमैन, अगेन चेयरमैन के नीचे एक पोजीशन है, फ्रॉम अमोंग इस मेंबर. इन एब्सेंस ऑफ चेयरमैन, चेयरमैन की हेल्थ खराब है तो डेप्यूटी चेयरमैन करके वो पूरा हाउस को लीड कर सकता है. इफ शी परफॉर्म ऑल फंक्शन एंड ड्यूटी ऑफ चेयरमैन, बस. देन पावर एंड फंक्शन ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा है, करना ही है. कितना है अभी बचा करने के लिए, जाने दो, नेक्स्ट कोई सेशन में कर लेंगे. हाँ करना है, बोलो आप लोग, बोलो एवरीबॉडी. कोई है ही नहीं. हाँ सर करा दो ना. हाँ सर करा दो. बहुत लोग निकल गए, लेकिन इतने क्यों, साइंस वाले क्यों अटेंड नहीं करते. उनका टेस्ट रखना पड़ेगा लगता है मुझे. रखा तो है सर अरे सर, जो अटेंड करते हैं उन लोगों ने क्या किया फिर? हाँ तो आप लोग